were in the chapter banks and simple interest. In today's video, I am going to explain you how to solve practice set 41. So our first main is, if the interest on 1700 rupees is 340 rupees for 2 years, the rate of interest must be. So here they have given the option A 12%, option B 15%, and option C 4%, and D 10%. So we have to find what is the rate of interest. So here we will write our principal answer. Here we will solve and write the answer. Principal is 1700 rupees. Our interest is, total interest is 340 rupees and time is 2 year. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है if the interest on 1700 rupees is 340 rupees, interest 1700 rupees का 340 rupees इंटरेस्ट है 2 साल में, 2 years में. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, टोटल इंटरेस्ट equals to P into R into T by 100. So our total interest is 340 equals to, our P is 1700 into rate of interest they have not given, so we will write is R same, and T is 2 year by 100. This 0 cut off, so remaining is 340 equals to 17 into 2 equals into R. So now we will take this to the right hand side. We will take 17 into 2 to the right hand side. First we will multiply 17 into 2, we will get 34 R. 340 divided by 34 equals to R. 34 ones are 34 tens are. So our R equals to 10%. Rate of interest क्या है 10 है. So D is our question. यहाँ पे फॉर्मूला हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही लिखना है, टोटल इंटरेस्ट का. तो R हमें नहीं दिया है, तो R को हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हम टोटल इंटरेस्ट कितना दिया, 340 दिया, वो लिखेंगे. प्रिंसिपल 1700 इंटू R इंटू टाइम 2 years बाई 100 फॉर्मूला में है. तो यहाँ 0 दोनों लास्ट में है, तो 0 कट हो जाएगा. तो 7 यहाँ पे 340 इक्वल्स टू 70 इंटू 2 इंटू R. तो 17 2 ज़ा 34 आएगा. तो 340 इंटू इक्वल्स टू 34 R. सो जब हम 34 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और डिनोमिनेटर में जाएगा, 340 बाई 34 इक्वल्स टू R. तो हमारा R इज 10%. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. If the interest on 3000 rupees is 600 rupees at a certain rate for a certain number of years, what would the interest
be on 1500 rupees under the same condition. So our option is 1A 300 rupees, B 1000 rupees, C 700 rupees and D 500 rupees. So what is our question? If the interest on 3000 rupees is 600 rupees, 3000 का interest है 6000 rupees at a certain rate for a certain number of year, एक certain rate पे और certain number of period में what could be the interest? Interest कितना है 1500 rupees का under the same condition. So here we will write the answer. Interest equals to 3000 certain rate equals to 600 rupees. So let us suppose the interest on rupees 1500 at the same rate x. 1500 का रेट ऑफ रेट कितना होगा वो फाइंड आउट करने के लिए, इंटरेस्ट कितना होगा फाइंड आउट करने के लिए दिया है, तो हम लोग x करके कंसिडर करेंगे. सो 600 डिवाइडेड बाय 3000 equals to x by 1500. So here 0 will go off. 6 ones are 6 5s are 1 by 5 equals to x by 1500. So this 1500 will go to right hand side. 1 by 5 into 1500 equals to x. 5 ones are 5 300s are 1500. So x equals to 300 rupees. So here we come to know that 300 rupees is the rate of interest on 1500 rupees. So our A is the answer. Our third question is Javed exposed 12,000 rupees at 9 PCPA in a bank for some years and withdraw his interest every year at the end of the period. He had received altogether 17,400 rupees for how many years had he deposited the money? His money. See here they have given the principal rate of interest and the total interest, but they have asked and the amount they have given and they have asked what is the time, how much time did he, how many year did he deposit the money, that we have to find. So here our answer is principal equals to 12,000 rupees and rate of interest equals to 9 PCPA and our amount equals to 17,400 rupees. So first we have to find the interest. To find the interest, here we have got principal and amount. So we will write amount formula. Amount equals to principal
plus interest. So what is our amount? 17,400 रुपीज़. यहाँ पे हमें क्या दिया है? अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया और रेट दिया है. तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के बाद हमें टाइम फाइंड आउट करना है. तो हम अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे. अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो अमाउंट कितना है? 17,400 रुपीज़. सो प्रिंसिपल कितना है? 12,000 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट क्वेश्चन मार्क. सो इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो यहाँ पे अमाउंट कितना है? 17,400 और प्रिंसिपल कितना है? 12,000. तो हमारा आंसर क्या होगा? माइनस करने पर हमें आंसर आएगा 5,400 रुपीज़. 5,400 रुपीज़ हमें माइनस करने पर आएगा. सो अभी इंटरेस्ट मिल गया. तो अभी हमें टाइम फाइंड आउट करना है. टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला डालेंगे. टोटल इंटरेस्ट equals to P into R into T by 100. So what is our total interest? 5,400 equals to 12,000 into 9 into T by 100. So अभी जितना यहाँ बचा है T को छोड़ के पूरा हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे. तो 5,400 into जब हम यहाँ ए साइड राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर क्या होगा? ऊपर जाएगा, न्यूमिनेटर नीचे आएगा. सो यहाँ 100 होगा बाय 12,000 इंटू 9. सो 0 0 कट, 0 0 कट. 9 1 जा 9 60 जा. सो 12 1 जा 12 5 जा. So 5 year time equals to 5 years. ये हमारा आंसर है. पहले हम यहाँ पे 0 0 कट किए. 0 0 कट करने के बाद यहाँ 12 और 9 बचा. 12 और 9 बचा. यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ. 540 बाई 12 इंटू 9 बचा. तो 9 1 जा 9 60 जा आएगा. उसके बाद 60 बाई 12 बचा. तो यहाँ पे 12 1 जा 12 5 जा. तो यहाँ पे 5 ईयर हमारा आंसर आएगा. तो यहाँ पे उनका टोटल डिपॉजिट ईयर कितना था? 5 ईयर था. सो हियर आई फिनिश माय थर्ड क्वेश्चन. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. लालता बिन borrowed some money from a bank at a rate of 10 PCPA interest for 2.5 years to start a cottage industries. If she paid 10,250 rupees as total interest, how much money had she borrowed? So in this question what they have given? They have given the rate of interest and here they have given we have to find how much money that she had borrowed. So to find out that, and they have given the here they have given the simple interest total interest also, but we have to find the principal. यहाँ पे क्या दिया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और टोटल इंटरेस्ट दिया है. हमें यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है और कितना मनी बोरोड किया है. तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे आंसर R equals to total rate of interest equals to 10 PCPA. Time equals to 2.5 years. 2.5 year means 2.5 years. And
total interest equals to 10,250 rupees. So our formula is total interest equals to P into R into T by 100. So our total interest is 10,250 equals to P into rate of interest is 10, time is 2.5 by 100. So now this 2.5 we will convert it into, we will remove this 10 point. So 10,250 equals to P into 10 into 25 by 100 into 10. How here 10 came? We remove the point ना, यहाँ से डेसिमल जब निकालेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम 10 करके कंसिडर करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर है. यहाँ पे डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में एक ही नंबर है, तो यहाँ जब हम डेसिमल निकालेंगे तो यहाँ पे 10 करके लिखेंगे. सो 10 कट ऑफ यहाँ लिखेंगे. तो 10,250 इक्वल्स टू P इंटू 25 बाई 100. अभी ये 25 बाई 100 हम लोग राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और P को 25 बाई 100 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे. यहाँ पे 10,250 बाई इंटू 100 बाई 25 इक्वल्स टू P. 25 वन जा 25 फोर जा 100. तो यहाँ पे 10,250 इंटू 4 इक्वल्स टू P. तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा P इक्वल्स टू 41,000 रुपीज. 41,000 रुपीज हमारा प्रिंसिपल है. तो हाउ मच मनी ही बोरोड? ही बोरोड 41,000 रुपीज. देयरफॉर Lalta Bean borrowed 41,000 rupees. तो यहाँ पे 41,000 rupees उन्होंने बोरो किया. Here I finished my fourth question. Now fifth main. Our fifth main is fill in the blanks in the table. Here they have given the table and we have to fill in the blanks. So first is serial number, principal, rate of interest, PC, PA, time, interest and amount. See, our first one is first question is, in first question they have given the principal 4,200 and rate of interest 7%, time 3 years, and they had told find simple interest and amount. In our second question we have to find principal. They have given rate of interest 4 years and interest they have given 1,200 rupees. And in our third question they have given the principal, rate of interest, time they have not given, and they have given the interest 800 and amount we have to find. Here also same, rate of interest we have given, time we have to find, and they have given the total interest and amount. And our last question is, they have given the they have not given the principal, we have to find the principal. Then they have given the rate of interest and time they have given, and they have given the
interest, total interest also. We have to find the amount. ये टेबल में दो दो चीज फाइंड आउट करना है, तो हम सॉल्व करके फाइंड आउट करके यहाँ पे जो भी कॉलम में एम्प्टी बॉक्स है वहाँ हम लोग लिखेंगे. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, इन दैट दे हैव गिवन द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल कितना है? 4200 रुपीज. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 7%. एंड टाइम क्या है? 3 ईयर. फाइंड आउट करने के लिए दिया है टोटल इंटरेस्ट और अमाउंट. टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए दिया है और अमाउंट. सो हम पहले टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे. तो टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे. टोटल इंटरेस्ट equals to P into R into T by 100. So P कितना है? 4200 into 7 into 3 by 100. यहाँ 0 0 कट हो जाएगा तो हमारा बचा है 42 into 7 into 3. तो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 882 रुपीज़. तो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 882 रुपीज़. तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट 882 रुपीज़ आया. तो मैं यहाँ कॉलम में टोटल इंटरेस्ट की जगह पे लिखूंगी 882 रुपीज़. अभी अमाउंट फाइंड आउट करना है. तो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. सो प्रिंसिपल कितना है? 4200 प्लस इंटरेस्ट कितना हमें अभी मिला? 882 रुपीज़. तो यहाँ ऐड करके लिखेंगे 5082 रुपीज़ हमारा अमाउंट है. तो यहाँ पे अमाउंट के बॉक्स में लिखेंगे 5082 रुपीज़. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट कर चुके. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में क्या नहीं दिया है? प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए कहा और अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है. तो हम लोग पहले प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद अमाउंट फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे मैं सेकेंड क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रही हूँ. तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या नहीं दिया? प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है. रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6%, मीन 6 PCPA. एंड टाइम दिया है 4 इयर्स और इंटरेस्ट दिया है 1200 रुपीज़ और अमाउंट फाइंड आउट करना है. दो चीज फाइंड आउट करना है, एक प्रिंसिपल और एक अमाउंट. तो यहाँ फॉर्मूला लिखूंगी टोटल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100. तो P कितना है? P फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन मार्क. टोटल इंटरेस्ट कितना है? 1200 रुपीज़ इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है, टाइम 4 इयर्स एंड बाय डिवाइडेड बाय 100. सो P को छोड़ के 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज होगा. यहाँ पे देखो 1200 इंटू 100 बाई 6 इंटू 4 इक्वल्स टू P. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 1 जा 4 25 जा 100, 6 1 जा 6, 200 जा 1200. सो यहाँ बचा 200 इंटू 25 इक्वल्स टू P. तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो P इक्वल्स टू 5000 रुपीज़. तो P इक्वल्स टू 5000 रुपीज़ आएगा. तो प्रिंसिपल हमें मिला तो यहाँ पे प्रिंसिपल के जगह पे लिखेंगे हम, यहाँ प्रिंसिपल के प्लेस पे हम लिखेंगे 5000 रुपीज़. अभी अमाउंट फाइंड आउट करना है. यहाँ प्रिंसिपल मिल गया तो अभी अमाउंट का फॉर्मूला डालना है और फाइंड आउट करना है अमाउंट. अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल कितना? 5000, इंटरेस्ट है 1200.
तो यहाँ पे इसको ऐड करना है। ऐड करने पर हमें आंसर आएगा 6200 रुपीज़। तो हमारा अमाउंट है 6200 रुपीज़, 6200 रुपीज़ आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में, यहाँ पे टेबल में हम कंप्लीट करना है, तो यहाँ अमाउंट के प्लेस में मैं लिखूंगी 6200 रुपीज़। ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन हुआ। नाउ थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, 8000 प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, टाइम और अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो पहले हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद टाइम फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना है 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5, टाइम फाइंड आउट करना है और टोटल इंटरेस्ट कितना दिया है 800 और अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो हम पहले टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद अमाउंट। टोटल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100। टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ 800 इक्वल्स टू 8000 इंटू 5 इंटू T बाई 100। तो अभी ये जितना है T को छोड़ के पूरा राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज होगा, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे। 800 इंटू 100 बाई 8000 इंटू 5। सो 0 0 कट, 0 0 कट, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 2 इक्वल्स टू T। तो सो देयरफॉर T इक्वल्स टू 2 ईयर्स। तो हमें यहाँ ईयर्स मिला, तो यहाँ पे कॉलम में हम लिखेंगे टाइम के प्लेस में 2 ईयर्स। तो यहाँ पे 2 ईयर्स लिखेंगे। अभी अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल कितना है 8000 प्लस 800, तो यहाँ में आंसर आएगा 8800 रुपीज़। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है 8800 रुपीज़। तो अभी वहाँ कॉलम में हम लिखेंगे 8800 रुपीज़ अमाउंट के प्लेस में। तो यहाँ पे लिखेंगे 8800 रुपीज़। अभी थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में देखो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है और टाइम फाइंड आउट करना है। अमाउंट, इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। तो अभी पहले हम लोग प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद टाइम फाइंड आउट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, दे हैव गिवन वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 और टाइम फाइंड आउट करना है और टोटल इंटरेस्ट दिया है 6000 रुपीज़ और अमाउंट दिया है 18,000 रुपीज़। सो फर्स्ट हम प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे, तो अमाउंट का फॉर्मूला डालेंगे। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 18,000 रुपीज़, प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क है, प्लस इंटरेस्ट 6000 रुपीज़ दिया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए माइनस करना है। तो P इक्वल्स टू 18,000 रुपीज़ माइनस 6000 रुपीज़, तो P इक्वल्स टू 12,000 रुपीज़ आएगा। जब माइनस करेंगे तो हमें 12,000 रुपीज़ आएगा। हमारा प्रिंसिपल कितना है 12,000 रुपीज़। अभी वहाँ पे टेबल में कंप्लीट करके लिखेंगे 12,000 रुपीज़ प्रिंसिपल के प्लेस पे। यहाँ हम लिखेंगे 12,000 रुपीज़ प्रिंसिपल के प्लेस में। अभी टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम के लिए हम लोग टोटल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला डाल के टाइम फाइंड आउट करेंगे। सो टोटल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू T इंटू R बाई 100। सो टोटल
टोटल इंटरेस्ट कितना है 6000, पी कितना है 12000, टी क्वेश्चन मार्क, आर कितना है 5 years बाय 100। तो अभी टी को छोड़कर पूरा राइट लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे राइट हैंड साइड से, तो 6000 इंटू 100 बाई 12000 इंटू 5 इक्वल्स टू टी। 0 0 कट ऑफ। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, सो 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, 20 बाई 2 इक्वल्स टू टी। 5 1 जा 5, 5 10 जा, सो 5 10 जा 20, टी इक्वल्स टू 10 years। यहाँ हमें क्या आएगा, टी इक्वल्स टू 10 years आएगा। तो अभी टाइम के प्लेस में हम लिखेंगे 10 years, हियर 10 years। नाउ लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल और अमाउंट, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 2.5, तो इसको 2.5 करके कंसिडर करके हम सॉल्व करेंगे। सो फिफ्थ क्वेश्चन है, they have given to find principal and time, sorry not time, अमाउंट और प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 2.5 है, तो हम उसको 2.5 करके कंसिडर करेंगे। और टाइम है 5 years और टोटल इंटरेस्ट है 2400 रुपीज। सो पहले हम प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद अमाउंट। तो पहले हम टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल के प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे। टोटल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। टोटल इंटरेस्ट कितना है 2400 इक्वल्स टू पी इंटू 2.5 इंटू 5 बाई 100। सो अभी ये पॉइंट निकालना है, तो क्या होगा 2400 इक्वल्स टू पी इंटू 25 बाई 10 इंटू 5 इंटू 100 बाई 100। तो ऐसा होगा। अभी पी छोड़ के पूरा राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। राइट हैंड साइड जब लेके जाएंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाए। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज होगा। 2400 इंटू 10 इंटू 100 बाई 25 इंटू 5 इक्वल्स टू पी। चेंज हुआ यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। सो यहाँ पे कितना बचेगा 2400 इंटू 2 इंटू 4 इक्वल्स टू पी। तो 2400 इंटू 8 इक्वल्स टू पी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2400 इंटू 8, तो हमारा आंसर आएगा P इक्वल्स टू 19,200 रुपीज़। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है 19,200 रुपीज़। तो वहाँ कॉलम में हम लिखेंगे 19,200 रुपीज़। कॉलम में लिखेंगे हम 19,200 रुपीज़। प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लिए। अभी अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला डाल के हम फाइंड आउट करेंगे। सो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल कितना है 19,200 प्लस इंटरेस्ट कितना है 2400। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऐड करने पर 21,600 रुपीज़ आएगा। तो हमारा अमाउंट क्या है 21,600 रुपीज़। तो अभी कॉलम में हम लिखेंगे 21,600 रुपीज़। सो हमारा अमाउंट कितना है 21,600 रुपीज़। सो हियर इससे मेरा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 41 सॉल्व हुआ पूरा। यहाँ पे मेरा टेबल पूरा कंप्लीट हुआ। फर्स्ट टेबल्स में इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए बोले थे, इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड आउट किए। सेकेंड में प्रिंसिपल और अमाउंट, उसके बाद टाइम एंड अमाउंट, एंड अगेन
प्रिंसिपल एंड टाइम, देन अ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। तो हमें दो ही फॉर्मूला यूज करना है, एक टोटल इंटरेस्ट का और एक अमाउंट का। अमाउंट का फाउंड आउट करने के लिए हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे और टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो सब फाइंड आउट करने के लिए हमें टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। तो इससे टेबल कंप्लीट होने के बाद मेरा प्रैक्टिस सेट 41 सॉल्व हुआ। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू प्रैक्टिस सेट